Dear friends, it is a great pleasure meeting you all this evening at the beautiful temple. You may have listened to so many lectures, but not in such an environment. Bells are ringing. It is adding harmony. You will not get that atmosphere. So many things going on parallel. Some are worshipping Shiva, some are worshipping Shakti, some are worshipping Ganpati Bappa, some are making noise with the bell, some children are playing there. You will not get such an environment. So, I am thankful to Sri Sharad Bhai Amin, who just now introduced me, for organizing this lecture, and I am also thankful to the committee, the trustees of this beautiful temple, Shiva Shakti temple, for organizing this lecture. From the speech of Sharad Bhai, it seems that I have to speak in English. But some people told that no, they will not be so much comfortable with English. So, should I continue to speak in English or is it okay? English? What is the option? Huh? What is the other option? Hindi, Gujarati, Bengali. Ask the kids. Bengali? English better, but young kid, what is okay? हिंदी और इंग्लिश. अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी समझने में तकलीफ होती है? थोड़ा बताइए. अंग्रेजी समझने में तकलीफ होती है ऐसा कोई है इधर? कितने लोग हैं? एक या दो है? न ज्यादा है? ज्यादा है? Swamiji, why don't you say a few things in Hindi? Say, make it English and Hindi combined. English, Hindi, Gujarati, all combined. You'll be fine. Everybody will be happy. अच्छा, अभी शरद भाई ने कहा मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए, मेरे को खुद को इंट्रोडक्शन देना. पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं. Let me introduce myself. I am coming from Baroda. Baroda now has become Vadodara. Just as Calcutta has become Kolkata, similarly, Baroda has become Vadodara. So I am coming from Vadodara. That is called the cultural capital of Gujarat. And Gujarat is in the western part of India. So there are, you must have heard the name of Swami Vivekananda का नाम तो सभी ने सुना होगा. स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में. क्यों? उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, शिव ज्ञान से जीव सेवा करो. ईश्वर सभी जगह है, मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजाघर में है, पर सबसे बड़े ईश्वर मनुष्य के हृदय में है. और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों को कहा था, अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव. अब मैं कुछ तुम्हें नए मंत्र देता हूं जो आज के जमाने के लिए ज्यादा आवश्यक है. वो है दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव. तो रोगी नारायण की सेवा के लिए, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में. As all of you know that Swami Vivekananda delivered his historic speech at the World Parliament of Religions in Chicago on 11 September 1893. 9/11 था वो भी, पर उस समय हमने स्वामी जी के संदेश को नहीं सुना अच्छी तरह से. उन्होंने कहा था सब धर्म के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए. तो इसलिए दूसरा 9/11 हुआ 108 साल के बाद. तो बाद में स्वामी जी यहाँ 3 साल रहे और फिर 1897 में वापस गए और वहां से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. उसके अभी 180 ब्रांच सेंटर्स हैं और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आउट ऑफ विच 13 आर इन यूनाइटेड स्टेट्स.
13 in Bangladesh, 135 in India, and 1 each in Japan, Fiji, Mauritius, Singapore, Switzerland, Argentina, Canada, Brazil, Australia, South Africa, etc. etc. तो ये जो सेंटर्स है उसमें से 135 जो इंडिया में, उसमें से 4 सेंटर गुजरात में है, राजकोट, लिमडी, पोरबंदर, बड़ौदा. I am coming from Baroda Center of Ramakrishna Mission. The historic Dilaram Bungalow, in which Swami Vivekananda himself stayed as the guest of the then Diwan Manibhai Jashbhai, was handed over by the government of Gujarat to Ramakrishna Mission for converting into a befitting memorial of Swami Vivekananda. 18 अप्रैल 2005 को रामनवमी के शुभ अवसर पर गुजरात सरकार ने रामकृष्ण मिशन को वह बंगला सौंप दिया जहां पर स्वामी विवेकानंद खुद रहे थे. So since that time we have started many activities, and I am coming from there. Sri Narendra Modi was that time Chief Minister. Now the President is the Prime Minister of India. He himself came and handed over the bungalow so that we could convert into memorial. वो सबसे उस समय से from that time we have got many activities. So in this center we have got many activities. There is a meditation room, there is a library, there is mobile medical unit, there is well education program, slum development project for children, for elderly people. There are students, teachers, there are workshops, so many types of programs. Now some people come there every day. कुछ लोग उसमें रोज आते हैं हमारे आश्रम में. Every day evening prayer में आते हैं. They are daily passengers. Some people they come only once in a week. Every week I give discourse on Bhagavad Gita and Gospel. तो उसके लिए कुछ लोग ऐसे होते रोज नहीं आते, but they come only once in a week. कुछ लोग होते हैं जो 15 दिन में एक बार आते हैं. They come only 15 days. After 15 days, क्योंकि they are members of library और किताब नहीं बदलाएंगे तो फाइन लगता है, इसलिए किताब बदलाने के लिए 15 दिन में एक बार आते हैं. अब कुछ लोग आते हैं केवल साल में 5 बार आते हैं. कब? जब आश्रम में खिचड़ी का प्रसाद होता है खाने के लिए. वहां की वो बंगाली खिचड़ी का प्रसाद बहुत फेमस है. तो 5 दिन ऐसे होते हैं जब सबको खिचड़ी मिलता है, सबको भोजन मिलता है. तो सुबह 5:30 बजे मंगल आरती होती है, उसमें बहुत कम लोग रहते हैं. 7 बजे पूजा शुरू होती है, उसमें भी कम लोग रहते हैं. फिर 9 बजे भजन शुरू होता है, उसमें भी कम होते हैं. 10:30 बजे हवन होता है, उसमें थोड़े बढ़ते हैं. फिर 12 बजे भोग आरती, उसमें थोड़ा बढ़ते हैं. मैक्सिमम भीड़ रहती है 1 बजे जब खिचड़ी प्रसाद बांटा जाता है. तो कई लोग रामकृष्ण देव का जन्मतिथि, माँ शारदा का जन्मतिथि, स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि 3, गुरु पूर्णिमा और दुर्गा पूजा भी आ रही है. अष्टमी का 21 अक्टूबर का आएगी. एकदम दोपहर को पूरा भरपूर रहेगा आश्रम पूरा खिचड़ी प्रसाद खाने के लिए. तो खिचड़ी प्रसाद के लिए सब लोग वहां आश्रम में आते हैं. आज आप लोगों को खिचड़ी खिलाई जाएगी. खाने की नहीं, लैंग्वेज की खिचड़ी. तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सब मिक्स करके हम लोग बोलेंगे. ठीक है, कंप्रोमाइज हो गया. देयर इज नो प्रॉब्लम. खिचड़ी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहां पर मैं जो आया हूं वो वेदांत सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के निमंत्रण पर आया हूं. जैसा कि मैंने कहा था, when I told you that there are 180 branch centers of Ramakrishna Mission spread all over the world. Apart from that, there are 1,000 centers which are not directly affiliated with Ramakrishna Mission. The monks of Ramakrishna Mission do not stay there. Of course, there is a parallel organization for women, for nuns, that is Sarda Math. उसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं. और रामकृष्ण मिशन के ही करीब करीब 1000 सेंटर्स ऐसे हैं सारे विश्व में जिसका संचालन हम लोग नहीं करते, सन्यासी लोग नहीं करते. हमारे गृहस्थ भक्त ये लोग प्राइवेट ट्रस्ट बनाते हैं और सेम आइडियोलॉजी, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, शिव ज्ञान से जीव सेवा, इस सब को लेकर के, सेवा की प्रवृत्ति को लेकर के दे आर रनिंग दोस सेंटर्स. ऐसे 1000 सेंटर में से एक सेंटर है ह्यूस्टन में, वेदांता सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन. यहाँ कुछ डिवोटी आए हुए हैं, वो आपको डिटेल्स में बताएंगे बाद में. एक्टिविटी आप उनसे मिल सकते हैं. आज सुबह मेरा लेक्चर था उधर मॉर्निंग में ऑन टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और कल था ऑन नर्सिंग रिलेशनशिप, द आर्ट ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग. ये लेक्चर्स के लिए मैं खास तो ग्रेटर ह्यूस्टन, यहाँ ह्यूस्टन में आया था.
गुरुद्वारा के ठीक पास में ही है वो वेदांत सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन, यू कैन विजिट दैट प्लेस। तो अभी फिर से बहुत बड़े प्रोग्राम होने वाले हैं, हमारे रामकृष्ण मठ सिंह जनरल सेक्रेटरी आने वाले हैं 20 तारीख को, कौन सी तारीख? 24th एट 6 PM को उनका लेक्चर है, उसमें जरूर जाइए। 24th को स्वामी सुविधानंद जी जनरल सेक्रेटरी विल स्पीक। तो यहाँ पर मैं आना कैसे हुआ, इसके पहले भी मैं आया था, दिस इज माय सेकंड विजिट टू ह्यूस्टन, पर ये शिव शक्ति मंदिर में उस समय आना नहीं हुआ था। बट आई केम टू वेदांत ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन, आई स्टेड फॉर 3 days। तो इस बार जो आना हुआ है, बेसिकली जैसा मैंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने he gave historic speech at the World Parliament of Religions in Chicago on 11 September 1893. In 1993, the centenary of that speech was celebrated by even UNESCO, and there was a great enthusiasm that was created. So the committee thought that this committee should be revived, and this mega event on interfaith harmony, which is much more relevant than it was at the time of Swami Vivekananda, should be revived. तो पार्लियामेंट रिलीजन कमेटी ने सोचा कि फिर से पार्लियामेंट रिलीजन शुरू होना चाहिए। 100 साल पहले हुआ, स्वामी जी ने संदेश दिया, हमने नहीं लिया, तो ये हमको बहुत फल भुगतना पड़ा। सो देयर इज सो मच ऑफ नीड फॉर सच इंटरफेथ हार्मोनी प्रोग्राम्स, इसलिए उस कमेटी को रिवाइव किया गया और ये डिसाइड किया गया एवरी 5 years देयर शुड बी पार्लियामेंट रिलीजन मेगा इवेंट। तो 1993 से शुरुआत हुआ अमेरिका से, then it went to various countries. Last one was in 2009 at Melbourne. After 20 years, this parliament religion has come back to America. इसलिए there is so much of enthusiasm because it has come back to America. 15 to 19 October this year, there will be a mega event, Parliament of Religions, Parliament of World's Religions in Salt Lake City, Utah, and about 10,000 delegates from 80 countries and 50 faiths are participating. So it's a mega event. I am going to speak there on 18th of October on Hinduism and service to humanity. So basically I came only for that purpose. There was one more important event, एक और event है। 11 September को ISOL की 5th International Conference हुई थी, वहाँ पर उसी शिकागो की आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में जहाँ स्वामी जी ने प्रवचन दिया था। तो देयर आई गेव माय स्पीच ऑन 11 September, सेम डेट इज आल्सो सेम बट ईयर इज डिफरेंट। स्वामी जी delivered on his story 11 September at the same art institute in 1893 that I spoke this time 2015, but I had the privilege of speaking from the same art institute Chicago. Of course the hall has been changed now, as you know. पहले कोलंबस हॉल था, बहुत बड़ा, इंटरनल्स अरेंजमेंट करके उसमें फुल्लरटन हॉल किया गया, बट एनीवे इट इज द सेम बिल्डिंग इज द सेम, इट इज नॉट बेसिकली बिल्डिंग इज सेम। तो वहां पर वो 11 September को दैट वाज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच। इन बिटवीन 6 weeks देयर आर 35 स्पीचेस स्प्रेड ऑल ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ USA एंड यूरोप। तो 9 September को मैं आया शिकागो, 11, 12, 13 को वहां पर लेक्चर्स हुए, 15 को सिंसिनाटी, 16 को लोवेवे, 17th 18th को इंडियानापोलिस, और yesterday there was a lecture at Greater Houston, Vedanta Society of Greater Houston, आज भी था। This is the 9th lecture and it will go on like this. Then tomorrow I go to Washington DC, from there I go to New York, first New Jersey, then New York, और न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया में बहुत सारे लेक्चर्स हैं फ्रॉम 24th of September to 5th of October. Then 5th October I will go to Berlin, on to Rome, on to Italy, Vatican, ये सब करके 12th of October I will come back to Los Angeles. फिर 13th October University of San Diego, and 14th October I will reach Salt Lake City. Up to 20th I will be there. 20th I fly from Salt Lake City to Chicago. 21st I go back to Baroda. 23rd को बड़ौदा पहुंच जाऊंगा। आपको सबको बड़ौदा का पूरा घुमा दिया, अमेरिका यूरोप करके बड़ौदा आ गए। अभी आप लोग बड़ौदा, ये तो अभी मेंटली आया है, अभी फिजिकली आना है। Whenever you come to India, you are all invited, because there are only 13 places in the whole world where Swami Vivekananda stayed have been converted to memorial. 3 अमेरिका में है, रजली मैनर नियर न्यूयॉर्क,
1000 Allen Park, that is also about 3 hours drive from New York, where Swami delivered his inspired talks, and South Pasadena, near our Hollywood Center. Rest 10 are in India. उसमें से एक है बड़ौदा में. तो you are all welcome there. हमारा गेस्ट हाउस अभी नहीं बना है because there is no space. We are trying to get some more land when there will be temple and guest house and all that. But the whole road is full of guest house. तो रोज 150 लोगों को खिलाते हैं हम लोग. 2-4 ज्यादा बढ़ जाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं. खाना आपका आश्रम में होगा, रहना आजू बाजू के होटल में होगा. आश्रम के दोनों तरफ होटल है, एक ही बाउंड्री, एक ही वॉल से. so there is no problem. You are always welcome. तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत आनंद है आप लोगों से मिल करके. तो आज का टॉपिक दिया गया है हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ. तो आप लोग को चेहरे से दिखता नहीं है कि आप लोग दुखी हैं. ऐसा लगता है आप लोगों को हैप्पीनेस मिली ही हुई है. जिनको सचमुच चाहिए वो तो आया ही नहीं है, वो आया ही नहीं है. एनीवे, अभी आप यू डू वन थिंग, आप इसको सुन लीजिए. आपके पास तो हैप्पीनेस है ही है, आप सुन लीजिए. और जो लोग नहीं आए उनको बता देना, उनको ज्यादा जरूरत है. जो नहीं आए दे नीड इट मोर. Happiness industry is the 5th largest industry in the world today. Do you know that? 5th largest industry. हैप्पीनेस के ऊपर इतने सारे वर्कशॉप, इतनी सारी किताबें लिखी जा रही, इतनी सारे सीरीज निकल रही, इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं. It has now become the 5th largest industry in the world. And very soon it will become the largest industry in the world. Even automobile industry will be falling behind. इतनी सब लोगों को जरूरत है हैप्पीनेस की. Everybody is in need of happiness. किसी को पूछो how are you? Fine. Any problem? ओ बाबा रे, प्रॉब्लम इतने सारे कंप्यूटर में फीड करोगे नहीं होगा. सभी लोगों को प्रॉब्लम. Everybody is under tension. किसी को भी पूछो under tension. एक छोटी सी बच्ची को मैंने पूछा कैसी हो, बहुत टेंशन में हूं. है इतनी छोटी सी बच्ची टेंशन में. तेरे को क्या का टेंशन? तेरे ग्रैंड पेरेंट्स का टेंशन मैं समझ सकता हूँ. ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ इंडिया में बहुत, उन लोग अभी आजकल टेंशन में है. अमेरिका में जैसे ओल्ड एज होम है, वो ओल्ड एज होम वहाँ खुल रहे हैं इंडिया में. तो ये तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का मैं टेंशन समझ सकता हूँ. उनको ग्रैंड वहाँ भेज देंगे ओल्ड एज होम में, कुछ ठीक नहीं है. तो इसलिए ग्रैंड पेरेंट्स टेंशन में मैं समझ सकता हूँ. तुम्हारे फादर का टेंशन समझ सकता हूँ, क्योंकि आजकल VRS आ रहा है कई कंपनियों में. VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कंपलसरी आ रहा है. इनडायरेक्टली कंपलसरी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. आप इसके पहले स्कीम नहीं लेंगे वॉलंटरी तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो इनडायरेक्टली कंपलसरी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कैसे आएगा, कब आएगा पता नहीं. सो आपका, तेरे पापा का तो मेरे को टेंशन समझ सकता है. तेरे बड़े भाई का भी टेंशन समझ सकता हूँ. 12th साइंस में, उधर में 12th साइंस में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है. एवरी होल हाउस बिकम फुल ऑफ टेंशन, क्योंकि उसको स्कूल में जाना पड़ता पढ़ने के लिए, फिर कोचिंग क्लास, फिर ट्यूशन क्लास. ही इज ऑलवेज अंडर टेंशन. इसके लिए हम लोगों को स्पेशल प्रोग्राम करना पड़ता है. हाउ टू ओवरकम टेंशन ऑफ बोर्ड एग्जाम, उसका स्पेशल प्रोग्राम हमको करना पड़ता है. हाउ टू ओवरकम टेंशन. इतने से तेरे बड़े भाई का टेंशन में समझ रहा हूँ 12th में. तेरे को और तेरी मम्मी का टेंशन समझ सकता हूँ. मम्मी को तो बहुत टेंशन है. हस्बैंड का मैनेजमेंट, सास का मैनेजमेंट, ये बंदर जैसे बच्चे, शैतान बच्चे, उनका मैनेजमेंट. फिर दाल का भाव बढ़ रहा है, वस्तुओं का दाम बढ़ रहा है, चीज वस्तु का दाम बढ़ रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो भी कठिन. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो आपको अमेरिका में किसी को नहीं है. यू आर सो फॉर्चुनेट. वहां पर तो जहां जाता हूँ सभी लोगों को, सभी जितनी मम्मीज हैं, जितनी मदर्स सिस्टर्स, दे ओनली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है काम वाली नहीं मिलती है. यहाँ तो आप लोग काम वाली रख नहीं सकते, इसलिए प्रॉब्लम नहीं, खुद अपने से काम करते हैं. वहाँ बिना काम वाले के काम नहीं चलता है. यहाँ तक एक महिला ने कहा हमको काम वाले दीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड करूंगी. मैं बोले मैं कहाँ से काम वाले लाऊंगा भाई, मेरा काम यही है काम वाली लाऊं. नहीं बोले तो फिर मैं सुसाइड करूंगी. इतना माने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है काम वाली का मैनेजमेंट. अच्छी काम वाली मिलती नहीं है. तो कैसी काम वाली चाहिए? बोले हमको फटफट काम करे ऐसी चाहिए, स्मार्ट चाहिए. दूसरा साफ सुथरा काम चाहिए, क्लीन काम करना चाहिए, गंदा काम मुझे पसंद नहीं है. तीसरा इशारे में समझे, बुद्धिमान होनी चाहिए. चौथा सामने बिल्कुल ना बोले, ओबीडिएंट होनी चाहिए. पांचवा छुट्टी 365 दिन एक भी ना ले,
और छठवां सबसे कम सैलरी लेते। ऐसी काम वाले मिलते नहीं है, मिलती है तो टिकती नहीं है। सबको वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने वो बच्ची को कहा, तेरी मम्मी का टेंशन समझ सकता हूँ, तेरे पापा का, तेरे ग्रैंड पेरेंट्स का, तेरे भाई का, तेरे को काहे का टेंशन? तो क्या कहा उसने मालूम है? स्वामी जी मैं अभी सीनियर केजी में हूँ, लास्ट ईयर जूनियर केजी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी, मम्मी ने कहा इस बार भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, इसलिए बहुत टेंशन। ये छोटे छोटे बच्चे टेंशन में हैं, आप बड़े के तो बात ही छोड़ दीजिए, इतने छोटे बच्चे। सीनियर बोले ये जो कंपटीशन की भावना और इतना सारा प्रेशर पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, पता नहीं, आई डू नॉट नो अबाउट अमेरिका, बट इन इंडिया द चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द अर्ली एज एंड दे हैव टू टेक द होल लगेज। उसका वजन से उसके दफ्तर का, उसका बैग, स्कूल बैग का वजन ज्यादा होता है। फिर उसका पापा उसको उठा करके जाता है, साथ में उसको वहां भेज देता है। So that child cannot lift the school bag. उसके लिए अलग उसके पापा जाते हैं उसके स्कूल बैग रखने के लिए। इतना सारा बर्डन, so much of burden. I am giving you a real example. हमारे रामकृष्ण मिशन हम लोग का ट्रांसफर होता रहता। From 10 years I am in बड़ौदा। 2005 को हमको बंगलो मिला। उसके पहले मैं 8 साल पोरबंदर में था। I was in पोरबंदर। Before that 10 years I was in राजकोट editing a गुजराती मंथली। उसके पहले 10 साल था मैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र, हमारा रूरल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, उसको गाइड कर रहा था। तो हम लोग का ट्रांसफर होता है। तो जब पोरबंदर में था, नया आश्रम मिला, तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किए। वी कंस्ट्रक्टेड, आपको मालूम होगा अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 को। तो रामकृष्ण मिशन की परंपरा है, इट इज अ ट्रेडिशन दैट कोई डिजास्टर होती है, इमीडिएटली वी स्टार्ट रिलीफ वर्क विदाउट वेटिंग फॉर गवर्नमेंट्स ऑर्डर। राइट फ्रॉम डे वन हम लोग रिलीफ का शुरू करते हैं। तो जैसे ही अर्थक्वेक आया, हम लोगों ने भीख मांगना शुरू किया, देश विदेश से, भाई जल्दी से पैसा दो, बहुत बड़ा रिलीफ करना पड़ेगा। भीख मांग करके 200 मिलियन रुपीस हम लोगों ने इकट्ठा किया, और वो 200 मिलियन रुपीस से हम लोगों ने जो प्राइमरी रिलीफ करने के बाद 81 स्कूल बिल्डिंग बनाई एंड 6 कॉलोनीज बनाई। उसमें से 37 स्कूल बिल्डिंग एंड 3 कॉलोनीज वेयर इन पोरबंदर। तो इतने सारे स्कूलों का कंस्ट्रक्शन वॉर फुटिंग में करना है, इसलिए हम लोगों ने हमारे डिवोटीज का हेल्प लिया। उसमें से एक हमारे थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ही वाज इन राजकोट, सो ही केम टू पोरबंदर टू हेल्प अस, मिस्टर रामजी भाई मनवर। नाउ ही स्टेज इन शिकागो, आई मेट हिम द अदर डे इन शिकागो, पूरी फैमिली साथ अब यहाँ आ गए हैं। तो उस समय वहाँ राजकोट में रहते, तो वहाँ से वो आए मेरे साथ। अचानक एक बार आकर बोले, स्वामी जी मुझे राजकोट जाना पड़ेगा। क्यों? बोली मेरे ग्रैंड डॉटर बीमार है और इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। मैं बोले ठीक है, जरूर जाइए। उसके बाद में पता पड़ा क्यों, क्या हुआ था। ग्रैंड डॉटर को बुखार आया था, शी हैड अ टेम्परेचर। दे शोड टू सो मेनी डॉक्टर्स, नो डॉक्टर कुड क्योर हर। जितने टेस्ट सब नेगेटिव, एवरीथिंग इज ओके, बट टेम्परेचर नहीं जा रहा है। लास्ट आफ्टरवर्ड्स दे टूक द गर्ल, स्मॉल गर्ल, वो उस समय दैट शी वाज इन 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड, 3rd 4th स्टैंडर्ड होगी, 7-8 इयर्स की, 9 इयर्स की होगी। 9 years old girl studying in 3rd standard, she got temperature, and that temperature was not coming down, and every test was negative. So they finally took her to a psychiatrist. एक साइकोलॉजिस्ट के पास उसको ले गए। साइकोलॉजिस्ट ने उसके साथ बात की, फिर उनको बोला कि मम्मी पापा को बोला आप अलग रहिए, मैं उसके साथ अकेला बात करूंगा। उसके साथ अकेले बात किया, बोले तू ठीक से बता व्हाई दिस टेम्परेचर इज कमिंग टू यू। वो कुछ बोले नहीं। साइकोलॉजिस्ट ने जोर से तमाचा मारा तो रोने लगी। बोले ये तो एक ही पड़ा है, जब तक तू सच नहीं बोलेगी मैं तमाचा मारता रहूंगा। तब बोली प्रॉब्लम क्या हुआ था कि एक दिन रात को वीडियो गेम देखने में रात चली गई, होमवर्क नहीं किया। अब दूसरे दिन स्कूल में गई, टीचर ने पकड़ा होमवर्क क्यों नहीं किया, तो बस उसने लिख दिया उसकी बुक में इसने होमवर्क नहीं किया है, मम्मी का सिग्नेचर करा के ले आना। अब वो वापस तो आई, अब सोच रही मम्मी को बोलूंगी इसमें सिग्नेचर करो कि इसने होमवर्क नहीं किया, लगाएगी जोर से। अच्छा, और यदि मैं स्कूल गई तो टीचर लगाएगी क्यों सिग्नेचर, वो लगाएगी।
तो किसका तमाचा खाऊं, मम्मी का खाऊं कि टीचर का खाऊं, मम्मी का खाऊं टीचर का खाऊं। ये टेंशन में बुखार आ गया, वो बुखार गया नहीं। ये रियल हकीकत में बोल रहा हूं। ओनली फ्यू इयर्स बैक। नाउ ऑफ कोर्स शी हैज गॉट मैरिड, दैट गर्ल आई मेट हर नाउ इन शिकागो, शी इज इन शिकागो, शी हैज बीन मैरिड टू नाउ वलसाड, तो अभी तो इंडिया आ जाएगी, अभी तो बड़ी हो गई। पर आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक when she was only 9 years old, 10 years old. This is the thing. छोटे चीजें बच्चों को भी टेंशन आ रहा है। Everybody is under tension. And हम लोग को ये लगता है, और सभी लोग they are all in need of peace. सब लोग शांति की खोज में हैं। पर शांति मिलती है? हम लोग शांति की खोज में तो हैं, but we are रॉन्ग नंबर डायल करते हैं। रॉन्ग नंबर डायल करने से कभी आपको ठीक से उत्तर नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एक बुढ़िया थी, वो तो चलो नहीं मिल रही, मैं भी मदद करता हूं, वो भी ढूंढने लग गया, उसको भी नहीं मिला। फिर उसको ट्यूबलाइट हुई, कहाँ खो गई थी? बोले बेटा उस कमरे में खो गई थी। हैं? और तुम यहां ढूंढ रहे? बोले वहां अंधेरा है ना, यहाँ लाइट इसलिए यहाँ। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ अस। वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस एंड पीस इन द लेटेस्ट मॉडल मोबाइल, लेटेस्ट मॉडल कार, लेटेस्ट मॉडल हाउस, लेटेस्ट मॉडल ड्रेस, एंड वी आर नॉट गेटिंग इट बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर अ ग्रेट प्लेस। कबीर ने कहा, द सोर्स ऑफ इंफिनिट जॉय, द सोर्स ऑफ अनलिमिटेड हैप्पीनेस, the source of infinite peace is inside every one of us, but we are searching for a wrong place. मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। You will get the source of infinite joy within your heart. There is a beautiful shloka from the Kathopanishad. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान तम आत्मस्थं येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। जो नित्य आत्मा के भीतर में जो नित्य परमात्मा है और चैतन्य तत्व के भीतर में जो परम चैतन्य तत्व है, उसको इसका जिसने दर्शन कर लिया, जिस धीर व्यक्ति ने, उसी को परम शांति मिलती और किसी को नहीं मिलती। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि जब मनुष्य जन्म लिया है तो उसका जन्म का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति करना। तो सभी भक्तों ने कहा, आप तो कहते हैं ईश्वर प्राप्ति करो, ईश्वर, तो ईश्वर है कहाँ? श्री रामचंद्र का ईश्वर हमारे सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और भगवत गीता में यही बात कही गई, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह जो ईश्वर हैं वे सबके हृदय में बैठे हैं। बैठ करके क्या कर रहे हैं? जैसे मशीन ऑपरेटर मशीन चलाता है, ऐसे सभी के पास यंत्र सबको पास काम कराते हैं। और वो जिन्होंने उस ईश्वर का दर्शन कर लिया, उनको परम शांति मिलती है। तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य जन्म लिया है तो शाश्वत सुख और शाश्वत शांति प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि वो हमने नहीं किया तो हमारा जीवन वृथा होगा। तो भक्तों लोगों ने कहा कि आप तो कहते ईश्वर ईश्वर, पर हमको तो दिखता नहीं ईश्वर, तो हम कैसे मानेंगे? आप कहते ईश्वर का दर्शन करो, पर ईश्वर तो दिखते नहीं है, तो ईश्वर है उसका प्रमाण क्या है? हम कैसे मानेंगे कि ईश्वर है? हम कैसे आपकी बात मानेंगे? श्री रामचंद्र देव कहा, अच्छा मैं तुम लोगों से बात करता हूं, उस पर तुमको विश्वास है? बोले हाँ विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम आपको देख रहे हैं। तुरंत श्री रामचंद्र ने क्या किया? उनके पास ऐसी एक चद्दर थी, चद्दर से उन्होंने अपना मुंह ढक दिया। मुंह ढक करके कहा, अच्छा आप आपको देख सकते हो? बोले नहीं, इसका मतलब यहाँ नहीं हूं। नहीं हो तो सही, तो अभी तुमने कहा दिखता है तो है, नहीं दिखता तो नहीं है। नहीं हो तो सही, तो क्यों नहीं दिखता? बोले बीच में पर्दा आ गया, बस। बोले यही बात है, ईश्वर हमारे बहुत नजदीक है, हमारे हृदय में है, पर हमको उसके दर्शन क्यों नहीं होते? अज्ञान का पर्दा आ गया। इसीलिए कबीर ने कहा,
घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, कटु वचन मत बोल रे तो है पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन अवश्य होंगे, ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे, पर घूंघट का पट खोलना पड़ेगा, अज्ञान का पर्दा खोलना पड़ेगा। तो ये अज्ञान का पर्दा कैसे खुलेगा? स्वामी विवेकानंद ने इसका बहुत अच्छा उपाय बताया। इस अज्ञान को पर्दे खुलने के लिए 4 उपाय बताए। क्या कहा उन्होंने? Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worship, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुषुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य एवं अंतर प्रकृति को वशीभूत करके। ये कैसे हो सकता है? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। 4 उपाय बताए। राजयोग क्या है? पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की बात है, यही है राजयोग। 8 उसके सोपान हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि, जब हमको शाश्वत आनंद मिलता है। तो यम कैसे हैं? यम 5 हैं, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। नियम भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 यम, 5 नियम, ये मानो उसकी भित्ति है, उसका फाउंडेशन स्टोन है। और उसके बाद में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। ये अष्टांग योग पतंजलि योग सूत्र में कहा, ये अष्टांग योग है। तो ये है राजयोग। राजयोग का कहना यही है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 प्रकार की नाड़ियां हमारे मेरुदंड के पास में बहती है। ईड़ा और पिंगला दोनों तरफ है, बीच में है वो सुषुम्ना नाड़ी। जब हम साधना करते हैं, मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति यह प्रवाहित होती है, मूलाधार ये सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए यहाँ पर सहस्त्रार तक पहुंचती है। मूलाधार से लेकर के 6 चक्रों का भेदन करते हुए जब सहस्त्रार में पहुंचती है, तब समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, शाश्वत शांति प्राप्त होती है। ये राजयोग। भक्ति योग है ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर के मंत्र का जाप करना, ईश्वर की पूजा पाठ करना। ये अभी जो चल रहा है सब भक्ति योग है। जो भी अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना, कुछ गंध, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करना, प्रार्थना करना, ये सभी है भक्ति योग। तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग में हमारे खुद के स्वरूप का चिंतन करना है, उस पर ध्यान करना है, श्रवण मनन निधिध्यासन। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, उस पर चिंतन करना है, यह है ज्ञान योग। और चौथा है कर्म योग। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसको पूजा में परिणत कर लेना। सभी कार्य पूजा में परिणत हो सकते हैं, परंतु अनासक्ति पूर्वक करना पड़ेगा। तो श्री रामकृष्ण देव ने को प्रश्न पूछा गया कि आपने कहा ईश्वर प्राप्ति सब मनुष्य का उद्देश्य है, तो क्या हमें उसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा? हमें उसके लिए क्या हिमालय में जाना पड़ेगा? संसार में रहते रहते, गृहस्थाश्रम का पालन करते करते क्या हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है? संसार में रहते रहते क्या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है? श्री रामकृष्ण देव ने कहा अवश्य हो सकती है। सभी को सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, सभी की हिमालय में जाने की, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ काम तुम कर रहे हो, कर्तव्य का कर्म करते करते, गृहस्थाश्रम में रहते रहते भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। पर एक बात याद रखना, यदि नाव में पानी होगा, यदि पानी में नाव होगी तो कोई हरकत नहीं है, पर नाव में पानी होगा तो नाव डूब जाएगी। तुम संसार में रहो, कोई हर्ज नहीं, संसार तुम्हारे मन में ना आए, ये तो तुम डूब जाओगे। तो संसार के प्रति अनासक्ति होगी, तभी तुम संसार का यदि अनासक्ति पूर्वक कर्म करोगे तो ये कर्म पूजा बन जाएगा, तो उससे तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अब प्रश्न ये उपस्थित हो सकता है,
दिस इज द बिग क्वेश्चन, हाउ टू रिमेन डिटैच्ड, अनासक्ति पूर्वक संसार कैसे करें। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं श्री रामकृष्ण देव, बड़े घर की कामवाली के सम्मान करो। भारतवर्ष में, इंडिया में हर एक घर में, खास करके जो पैसे वाले रहते हैं उसमें कामवाली रहती है। वो जो आया रहती है मेड सर्वेंट, वो मेड सर्वेंट वो घर का सब काम देखती है, घर में सफाई भी करती है, रसोई भी बनाती है, और जो मालकिन है, जो मकान मालकिन है, जो सेठानी है, उसका छोटा बच्चा है, उसको भी वही संभालती है। छोटे बच्चे को नहलाती है, खिलाती है, क्या बोलती, बेटा हरी नहा ले, बेटा हरी खा ले, बेटा हरी चल स्कूल चल। और वो छोटा सा बच्चा वो एकदम मेड सर्वेंट के साथ इतना घुल मिल जाता है, पूरा अटैच हो जाता है। सेठानी के पास नहीं जाता, माँ के पास नहीं जाता, ये मेड सर्वेंट के पास जाता है, कामवाली के पास जाता है। पर एक बात है, ये मेड सर्वेंट जब जब बोलती है बेटा हरी नहा ले, बेटा हरी खा ले, बेटा हरी स्कूल चल, वो जानती है मन में ये मेरा हरी नहीं है, मेरा सच्चा हरी तो वहां घर में बैठे रो रहा होगा, वो कभी नहीं भूलती है। इसके कारण क्या होता है, एक दिन बर्तन मांज रही थी, एक कांच की प्लेट टूट गई और सेठानी बहुत गुस्से में आ गई। मैं जापान से इतनी बड़ी कॉस्टली प्लेट लाई थी, तूने तोड़ डाला, गेट आउट। गुस्से में आकर उसको गेट आउट बोल दिया। अब वो काम वाली तो हंसते हंसते चली गई, क्यों, उसको तो दूसरा काम मिलेगा। पर काम वाली मिलना बड़ा मुश्किल, इंडिया में बहुत मुश्किल। फिर बाद में सेठानी को काम वाली मिली नहीं। फिर बाद में उसने खुद ने काम शुरू किया, कमर टूट गई, फिजियोथेरापी का इतना लंबा बिल आया। अरे बोले अच्छा, इससे अच्छा वो प्लेट टूट गई थी तो अच्छा था, क्यों मैंने गेट आउट कहा। वो पछताती है। और ये जो छोटा बच्चा जो हरी है, वो काम वाले के बिना रोता है, मेड सर्वेंट के बिना। वो माँ के पास नहीं जाता है, वो रोना शुरू कर दिया, क्योंकि he is attached, that boy is attached to the maid servant। पर मेड सर्वेंट को रोना नहीं आया, क्यों, उसको पहले से मालूम था ये मेरा हरी नहीं है, मेरा सच्चा हरी तो वहां झुपड़े में बैठ के रो रहा होगा। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, संसार में रहो, सबसे प्यार करो, माता पिता की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, सभी से प्यार करो, भाइयों से प्यार करो, पड़ोसियों को प्यार करो, सबकी सेवा करो। और मन में याद रखना, इनमें से कोई मेरा नहीं है। एक दिन अचानक कॉल आएगा, इमरजेंसी कॉल, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। अकेले आए हैं, अकेले जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हम निष्ठुर होंगे? स्वामी विवेकानंद बोलते, वर्क इन सीक्रेट, attachment is the source of all our miseries, but the walls do not have attachment. Should we be like walls? No. Then what is the solution? Solution है, there should be as much power of attachment as that of detachment. आसक्ति होना बहुत आवश्यक है। आसक्ति नहीं होगी, attachment is the source of all our miseries and attachment is the source of our pleasures also. attachment होगा तभी सुख मिलेगा, और डिटैचमेंट होगा तो उसी से सुख मिलेगा, उसी से दुख मिलेगा। एज मच पावर ऑफ अटैचमेंट एज दैट ऑफ डिटैचमेंट। तो अनासक्ति पूर्वक संसार करने से यह इसी गृह शासन रहते रहते भी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ये चार योग का समन्वय यदि हम अपने जीवन में करेंगे तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू इट? इट इज वेरी इजी। हाउ द रामकृष्ण मठ एंड मिशन मॉन्क्स एंड डिवोटीज, हाउ डू दे डू इट? सुबह हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, मंगल आरती होती है 5:30 बजे, तो वहां पर मंगल आरती किया, भक्ति योग हो गया, फिर सब लोग ध्यान करते हैं, राजयोग हो गया, फिर गीता पाठ होता है, ज्ञान योग हो गया। शाम को फिर से संध्या आरती होती है, खंडन भव बंधन जग बंधन बंदी तुम्हें, स्वामी विवेकानंद खुद ने जो प्रार्थना की थी वो हम लोग गाते हैं, भक्ति योग हो गया। फिर वचनामृत का पाठ होता है, ज्ञान योग हो गया, सभी लोग ध्यान करते हैं, राजयोग हो गया, और सारा दिन कर्मयोग। सभी सन्यासियों को, सभी भक्तों को कुछ न कुछ सेवा का काम करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो सारा दिन सेवा का योग। तो कर्म योग करने के लिए सैंडविच साधना में बता देता हूँ। सैंडविच तो आप लोग जानते हैं, आप लोग खाते भी हैं, बहन लोग बनाती भी हैं।
तो सैंडविच साधना, कर्मयोग करने के लिए सैंडविच साधना। तो सैंडविच कैसे बनता है? एक ब्रेड का टुकड़ा ले लिया, एक ब्रेड का टुकड़ा ले लिया, उसके ऊपर में मसाला डाल दिया, चीज, बटर, टोमेटो, जो डालना है डालते जाओ, फिर उसके ऊपर में ब्रेड का दूसरा टुकड़ा डाला, सैंडविच रेडी। उसी प्रकार से सुबह उठने के बाद, ओ लॉर्ड, व्हाटएवर आई विल बी डूइंग फॉर द होल डे, डेडिकेटेड अनटू यू, फ्रूट्स आल्सो डेडिकेटेड अनटू यू। हे ईश्वर, आज मैं सारे दिन जो कुछ भी काम करूंगा या करूंगी वो सब तुमको समर्पित, उसका फल भी तुमको समर्पित। ब्रेड का टुकड़ा हो गया। अब सारा दिन मसाला भरते जाओ, काम का मसाला भरते जाओ, भरतो भरो भरो भरो। रात को फिर सोते समय, हे भगवान, आज सारा दिन जिन्हें मैंने काम किया वो सब तुमको समर्पित, उसका फल भी तुमको समर्पित। ये ब्रेड का दूसरा टुकड़ा हो गया, सैंडविच रेडी। अब ये तो बड़ी सैंडविच बनाया, अभी छोटा छोटा सैंडविच बनाओ। ऑफिस जाते समय, हे भगवान, ऑफिस में जो कुछ भी काम मैं करूंगा वो सब तुमको समर्पित, उसका फल तुमको समर्पित। ऑफिस से आने के बाद, हे भगवान, मैंने जो अच्छा बुरा किया कल से जरा ज्यादा अच्छा करने का प्रयत्न करूंगा, जो अच्छा बुरा किया वो सब तुमको समर्पित, उसका फल तुमको समर्पित। इस प्रकार से सैंडविच साधना हम करेंगे। प्रेयर, दो प्रेयर के बीच में हम वर्क करेंगे, कन्वर्टिंग वर्क इनटू वर्शिप, कार्य को पूजा में परिणत करेंगे, तो ये कर्म हो जाएगा। तो दीज आर द 4 मेथड्स। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं दिस कॉम्बिनेशन ब्रिंग्स ग्रेट सक्सेस। इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन का जो सिंबल बनाया, उसमें सिंबल ऐसा होना चाहिए रामकृष्ण मिशन का जिसमें हमारा आइडियोलॉजी प्रसिद्ध हो। तो वो सिंबल आप देखेंगे रामकृष्ण मिशन का, उसमें एक तो सांप है, एक सूर्य है, एक जल की लहरें हैं, एक कमल का फूल है और एक हंस है। नीचे लिखा है तन्नो हंस प्रचोदयात्। जो सांप है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, राजयोग का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति होती है जब समाधि होती है, जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार में पहुंचती है, तो राजयोग का प्रतीक है। कमल का फूल भक्ति योग का प्रतीक है। जल की लहरें कर्मयोग की लहरें, कर्मयोग की प्रतीक है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान योग का प्रतीक है। और हंस परमहंस का प्रतीक है, मतलब परमात्मा का प्रतीक है। कहने का मतलब ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग, चारों योग के समन्वय से परमात्मा की प्राप्ति जल्दी से होती है। हम और कुछ नहीं करना है। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हमारे भीतर में है। हमारे मन में जो इक्वेशन है उसको निकाल देना है। H is directly proportional to M, where H is equal to happiness and M is equal to money. हम लोग ऐसा सोचते हैं सुख आएगा, पैसा आएगा तो सुख आएगा। आता है, हाँ आता है, पर टिकता नहीं है। लेटेस्ट मॉडल की कार ले ली, बहुत आनंद आया, और पड़ोसी के पास जब लेटेस्ट मॉडल की कार आई 5 दिन बाद मुंह ऐसा छूटा हो गया। 5 दिन तक वो शांति रही, बाद में टिकती नहीं है। इसीलिए शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है। द सोर्स ऑफ इन्फिनिट जॉय इज ऑलरेडी देयर। By combination of these 4 yogas, we can convert, we can have this eternal peace. This is eternal peace. इसमें time लगेगा. But the more you meditate, the more you pray, the more you read positive thoughts, the more you read, you do service to humanity. जितना हम सेवा का काम करेंगे, तत्काल हमको शांति मिलेगी। अंत में माँ शारदा देवी का अंतिम वाक्य बोल करके मैं अपना यह वक्तव्य समाप्त करूंगा। माँ शारदा देवी स्वामी के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उनकी पत्नी का नाम था माँ शारदा देवी। माँ शारदा देवी का जब महासमाधि उनकी हुई 21 जुलाई 1920 को, तो उनकी वो मृत्युशैया पर थी। उसके 2 दिन पहले एक शिष्य आकर के रोने लगी, माँ तुम चली जाओगी, हमारा क्या होगा? माँ ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ईश्वर तुमको देखेगा। और फिर उन्होंने अपना अंतिम वाक्य कहा, बस उसमें सारा उपदेश आ गया, वेदांत का सारा सार हो गया। क्या कहा माने? यदि शांति चाहते हो, नहीं शांति चाहते अलग बात, यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना।